Good morning, students. Welcome to the English class. Students, as you all know that we were reading lesson fire, friend and foe, and we had already read the chapter till here, that is people are killed or injured. Today we will continue it. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. जिस प्रकार आग जलाने के लिए इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तीन प्रकार से आग बुझाई जा सकती है। जिन तीन चीज़ों की ज़रूरत आग जलाने के लिए होती है, उनमें से एक को आग बुझाने के लिए निकाल लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम ईंधन को उस आग से निकाल सकते हैं। यदि आग में ईंधन नहीं रहेगा तो कोई ज्वलनशीलता भी नहीं रहेगी। हम अक्सर आग में ईंधन की पूर्ति रोककर उसे बुझ जाने देते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from burning fuel and lowers the temperature. आग बुझाने का दूसरा तरीका है, उसमें ऑक्सीजन न जाने दी जाए। ऑक्सीजन की कमी का मीनिंग होता है आग बुझ जाना। छोटी मोटी आग पर हम गीला कंबल या बोरी डालकर उसे बुझा लेते हैं। ऐसा करने से ज्वलनशील पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह भी ज्वलनशील पदार्थ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता। आग पर काबू पाने का तीसरा उपाय है उस हीट को कम कर देना या बिल्कुल ख़त्म कर देना। यदि तापमान को ज्वलन बिंदु से नीचे ले जाया जाए तो ईंधन का जलना रुक जाता है। आप एक जलती तीली या मोमबत्ती को लें, उसको बुझाने हेतु फूंक मार दें। ऐसा करके उस लपट जो आग की उस पर वो है लपट है, उसके चारों ओर की गर्म हवा को हम हटा देते हैं। तापमान को ज्वलन बिंदु के नीचे ले आते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। कभी कभी आग पर पानी भी डाल दिया जाता है। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. वह ताप को जलते ईंधन से अपनी ओर खींच लेता है तथा तापमान को कम कर देता है और आग ठंडी पड़ जाती है। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire.
Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. We spend millions of rupees each year in fighting fire, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learnt rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. कुछ प्रकार की आग को पानी से ठंडा नहीं किया जा सकता। यदि तेल में लगी आग पर पानी फेंका जाता है तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगेगा और जलना कंटिन्यू रहेगा। ऐसा करना बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि पानी बहुत स्पीड से बह सकता है। वह अपने साथ तेल को बहाकर ले जाएगा तथा आग को भी फैला देगा। पानी का इस्तेमाल बिजली के अप्लायंसेस में लगी आग पर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पानी फेंक रहा है उसे बिजली का करंट लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाने वाला संयंत्र ही बिजली से आग पर काबू पाने का सबसे अच्छा साधन है। हम आग से जूझने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हम उससे भी अधिक धन आग लगने से बचाव पर या उसके नियंत्रण पर रोकने पर व्यय करते हैं। कंक्लूजन बेस अगर कहें तो हमने सीख लिया है कि आग को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है या रूटीन हमारे डेली रूटीन में उसका किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड to the blaze. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Band of firefighting workers with special equipment known as fire bridges are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. बहुत समय पहले आग वाले कुशल लोग नहीं हुआ करते थे। जब आग लग जाती थी तो हर व्यक्ति जो है जैसे फायर ब्रिगेड वाले पर्सन्स होते हैं वैसा बन जाता था। लोग एक मानव की श्रृंखला बना लेते थे। वे आज भी आवश्यकता होने पर भी ऐसा करते हैं तथा किसी कुएं या तालाब में पानी की बाल्टियां भर भर कर जो है आग पर डालने के लिए ले जाते थे। आज भवन निर्माण के बारे में ऐसे कानून बन चुके हैं जो ज़रूरी रूप से लागू करते हैं कि दो भवनों के बीच में कुछ स्थान खुला रहे ताकि आग का खतरा कम हो जाए। हर नई बिल्डिंग विशेषकर सार्वजनिक स्थान वाले भवन के लिए आग रोकने के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक विशेष ऑब्जेक्ट से सज्जित अग्निशमक दस्ते जिन्हें फायर ब्रिगेड कहते हैं आग पर काबू पाने को हमेशा रेडी रहते हैं। अग्निशमक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। उनके पास अनेक प्रकार की
क्वालिफिकेशंस होती हैं, वे बिजली की आपूर्ति काट देते हैं, मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक देते हैं, खतरनाक बनने वाली दीवारों को गिरा देते हैं, जल छिड़काव तथा अन्य सामग्री का उपयोग करके आग पर काबू पा लेते हैं। वे फर्स्ट एड में भी एफिशिएंट होते हैं ताकि आग से झुलसे तथा धुएं से प्रभावित लोगों की हेल्प कर सकें। आग की खोज और उसके इस्तेमाल ने आदि मानव को प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने और धीरे धीरे एक स्थायी रूप से जीवन यापन करने का रास्ता अपनाने में मदद की। आग सचमुच ही एक फ्रेंड है, पर जैसा कि हम जानते हैं वह अगर बेकाबू हो जाए तो हमारे लिए सबसे खतरनाक शत्रु भी साबित हो सकती है। थैंक यू।